Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our strategy classes dear friend where we have been doing some important strategy sessions with regard to sociology optional dear friend. And in those series of lectures, today we are here to discuss one very important session dear friend, one very important idea, that is art of answer writing. How to write good answers, especially in sociology optional. So if you see this entire scheme of civil services examination dear friend, the place where most of the aspirants they struggle, that is how to present their ideas, how to present their knowledge dear friend, because ultimately marks will be there for your precision and accuracy with regard to how you present your ideas. So presentation of thought, presentation of your knowledge, that is very crucial aspect in civil services examination. And keeping in mind that thing dear friend, I have come up with this particular session, that is how to write effective answers in sociology. So we shall start our session, but before that there is some basic information about me dear friend. I have been associated with civil services aspirant since last more than 14 years, and in those years dear friend, whatever experiences I have through you aspirants, that I am trying to share with you people. And if you have any doubt with regard to sociology, social issue or polity and governance, you can definitely connect with me through these social media platform dear friend, and whatever your doubts are there, that you can discuss with me. Now we shall start our session of answer writing dear friend. देखिए answer writing is very crucial aspect. Repeatedly I am saying that answer writing is very crucial aspect, because if you think about optional specifically, that is important in GS also, but this session is for optional answer writing and from sociology point of view dear friend. Very often it happens कि बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी हम ये समझ नहीं पाते कि कैसे लिखना है. देखिए स्पेशली इन सोशोलॉजी ऑप्शनल, repeatedly I have discussed with you people that people or aspirants from any background, they can take sociology optional. आप में से कई लोग देखिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं और डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से भी आते हैं. तो कैसे आंसर्स लिखे जाएं, वेदर आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट फॉर्म, पैराग्राफ फॉर्म, हाउ देयर शुड बी सम फ्लो इन आंसर, ये एक बड़ा डाउट होता है दोस्तों. आप में से बहुत सारे लोग जब आंसर लिखते हैं दोस्तों, जो भी आपने पढ़ा होता है, देखिए वॉट एवर यू हैव स्टडीड, वॉट एवर नोट्स यू हैव प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग यू ट्राई टू राइट इन आंसर डियर फ्रेंड, सब कुछ आप आंसर में लिखने की कोशिश करते हैं. तो देखिए एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो जनरल आइडियाज है डियर फ्रेंड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. एंड इन ऑप्शनल डियर फ्रेंड, इन ऑप्शनल एवरीवन वॉन्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स. आप में से हर कोई अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, बट ये हमने अपने अलग अलग सेशंस में ये आपके साथ बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया है दोस्तों कि ये जो बात होती है कि आउट ऑफ 500 यू शुड स्कोर 300 मार्क्स, अबव 300 मार्क्स. देखिए देयर आर सम क्रूशियल पैरामीटर्स डियर फ्रेंड, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है दोस्तों कि आपको अपने सिलेबस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और देखिए मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया है दैट नोइंग द सिलेबस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स डियर फ्रेंड. सिलेबस के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है डियर फ्रेंड. बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पर, एजुकेशन पर, फैमिली पर, मैरिज पर, पॉलिटिक्स पर, रिलीजन पर, स्टडीफिकेशन पर अपने आइडियाज दिए हुए हैं. When you master the syllabus, whether you are able to develop that coherent scheme or not dear friend, पेपर 1 के वो एस्पेक्ट जो पेपर 2 के साथ ओवरलैपिंग है, and how something that you have learned in paper 2 that you can use in paper 1, and something that you have learned in paper 1 that can use in paper 2. देखिए such kind of interlinkage, such kind of relationship, that is very crucial, especially when you write answers dear friend. So otherwise you will find that understanding syllabus is very important. और एक बार आपने अगर सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स है डियर फ्रेंड. In paper 1 we have discussed that there are 10 units.
In paper 2 we have discussed there are overall almost 15 topics, dear friend. Once you have gone through the syllabus, dear friend, the next important thing is आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें. अब बोलेंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्यों देखें, अगले साल तो यूपीएससी कुछ नया पूछने वाले हैं. तो वाई एवरीवन इज सेइंग दैट यू शुड गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डियर फ्रेंड. Once you go through previous year question analysis, you will be able to understand that what is that pipeline, वो क्या themes हैं जहाँ से बार बार repeatedly UPSC ने questions पूछे गए हैं. And keeping that thing in mind, you should prepare your notes. आप जब अपने notes prepare कर रहे हो दोस्तों, कई बार ऐसा होगा कि syllabus जब आप देखते हैं, most of us when we take sociology as an optional, देखिए एक बहुत बड़ा criteria ये होता है कि सोशोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कंसाइज है. बट अगेन आई एम सेइंग, डियर फ्रेंड, थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, दैट देयर आर नंबर ऑफ हिडन एरियाज दैट आर नॉट मेंशन इन द यूपीएससी सिलेबस, बट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दोज आइडियाज दैट वर वेरी मच रिलेटेड, डियर फ्रेंड. और एक बार जब आपने अपना नोट्स बना लिया, कीपिंग इन माइंड syllabus and previous year question analysis, the next important thing or perhaps most important thing is writing answers, dear friend. कैसे answers को attempt किया जाए, what UPSC is expecting. For example, मैं आपको example देता हूँ. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, your first unit deals with sociology the discipline. आपकी पहली जो यूनिट है ये है sociology the discipline. जब आप इस यूनिट को देखते हैं तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं दोस्तों. Modernity and social change in Europe and emergence of sociology, scope of the subject and comparison with other social sciences, sociology and common sense. देखिए बहुत ही easily इन 3 टॉपिक्स को 3 लेक्चर में भी कंप्लीट किया जा सकता है. पहला जो टॉपिक है वो बस यही पूछ रहा है कि when arrival of modernity was taking place in European society, when traditional European society was transforming into modern European society, how a new discipline of sociology came into existence. So when arrival of modernity was taking place as a result of various social changes in Europe, how this particular discipline sociology came into existence. This is syllabus, dear friend. ये टॉपिक है. अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं तो देखिए जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं तो देखिए यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. यहां पर बात हो रही है इनलाइटनमेंट की, यहां पर आपको बात हो रही है मॉडर्निटी की, यहां पर आपके साथ बात हो रही है देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की. सो व्हेन यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस जब आप देखते हैं तो वहां पर देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं. रिनेसा, इनलाइटनमेंट, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन. These are the hidden areas. What are those forces that have contributed towards emergence of sociology? So syllabus, if you see, it simply says arrival of modernity in context of Europe as a result of various social changes leading to emergence of sociology. But what were those changes that were taking place in European society? As a result of those changes, traditional European society was transforming into modern European society. And when traditional European society was transforming into modern European society, one such intellectual outcome, बहुत सारे outcome हो रहे थे, but एक intellectual outcome हो रहा था, that was emergence of sociology. So these areas, dear friend, these areas are hidden areas. Enlightenment के बारे में जब आप पढ़ते हैं, रिनेसा के बारे में आप पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, और कैसे इनका कनेक्शन है विद रिगार्ड टू इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. सच थिंग, ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर नोट्स, डियर फ्रेंड. सो व्हाई आई एम सेइंग दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे हेल्प यू टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन, कंसिडरिंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम सोशोलॉजी बैकग्राउंड. एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम सोशोलॉजी बैकग्राउंड, आप अगर सोशोलॉजी बैकग्राउंड से हैं भी, अगर आपने BA या MA या MPhil कुछ भी किया है, तो कितना सोशोलॉजी इस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है. देखिए दैट स्ट्रीमलाइनिंग यू विल बी एबल टू डू वंस यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. एक बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि व्हाट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू रिक्वायर फॉर
दिस सोशोलॉजी ऑप्शनल। और देखिए कई बार आपको पता चलेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं डियर फ्रेंड। theories of stratification repeatedly UPSC has asked repeatedly। कुछ thinkers हैं जिनके कुछ सब टॉपिक्स हैं repeatedly year after year UPSC has asked question related to that area। so analysis of previous year question is very important when you are going for answer writing dear friend। जब भी आप आंसर राइटिंग के लिए जा रहे हैं तो देखिए ये एनालिसिस बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अपने माइंड में याद रखना है। अब ये जब आप एनालिसिस करते हैं तो एक चीज जो हम कई बार मिस कर जाते हैं दोस्तों, कई बार इग्नोर कर जाते हैं, व्हेन यू डू दिस एनालिसिस यू विल फाइंड दैट देयर आर सम थीम्स, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थीम्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। व्हाट आर दीज थीम्स डियर फ्रेंड? कई बार देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद रिगार्ड टू कंपैरेटिव एनालिसिस दैट ब्रिंग आउट ए कंपैरिजन बिटवीन मार्क्सियन सोशियोलॉजी एंड पार्सोनियन सोशियोलॉजी, or Marxian conception of social change and Parsonian conception of social change, and whom you think that his theory is more relevant in context of social change that is going on in Indian society। So देखिए such kind of the question that UPSC has asked, then bring out a distinction between qualitative methods and quantitative methods, differentiation, ठीक है, differentiate between concept of social stratification and सोशल एक्सक्लूजन। ये ऐसे क्वेश्चन, एक थीम इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, दैट इज थीम रिलेटेड टू कंपैरेटिव एनालिसिस। देन देयर आर सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दैट इट इज नॉट योर कॉन्शियसनेस दैट डिटर्मिन्स योर बीइंग, रादर योर बीइंग डिटर्मिन्स योर कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली किसी ने ये स्टेटमेंट दिया होगा, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आर चेंज ओरिएंटेड क्वेश्चंस। डू यू रियली थिंक दैट ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ रिलीजन हैज चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी? ट्रेडिशनल नोशन ऑफ फैमिली हैज लॉस्ट इट्स रिलीवेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो देखिए वाई आई एम सेइंग दैट यू शुड एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिफोर आंसर राइटिंग, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई that there are certain themes, and from those themes repeatedly UPSC has asked questions। यहां पर आप देख सकते हैं compare and contrast sociology with anthropology, compare Karl Marx with Emil Durkheim with their framework on division of labor, clarify the distinction between household and family। So that is one important theme from where questions have been repeatedly asked। Then there are statement based questions like self and society, they are twin bond, education helps in perpetuating social and economic inequalities, secularism was an outcome of 20th century humanistic radicalization। So these questions are dear friend, they are statement based question। Then third theme dear friend, trace the changing nature of organization of work, discuss the changing interface between state and civil society, discuss the changing। So why I am saying that when you are going for answer writing you should try to appreciate that from which themes most of the questions that have been asked। इसके बेसिस पर जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, आप इन चीज़ों को ऑलरेडी उसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, और जो आपको ये बोल रहे हैं कि देखिए यही सबसे बेस्ट तरीका है आंसर राइटिंग का, देखिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्हेन एज ए मेंटर आई इवेलुएट आंसर शीट्स ऑफ माई स्टूडेंट, देखिए आई ऑलवेज लुक फॉर सम इंडिविजुअलिटी इन देयर आंसर्स डियर फ्रेंड। द स्टडी मटेरियल और द रिसोर्सेस दैट यू आर एक्सपोज टू मोर और लेस दे आर कॉमन डियर फ्रेंड। आप इन आंसर्स में कैसे अपनी इंडिविजुअलिटी को इंक्लूड करते हैं, दैट मैटर्स वेरी इंपॉर्टेंट वे, दैट मैटर्स मोस्ट। सो हियर आई एम सेइंग, देखिए जब आप इन थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसे आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। अब जब बात होती है इफेक्टिव आंसर राइटिंग की, सो देखिए यहां पर दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी डियर फ्रेंड। पहला, लिखना क्या है, और दूसरा कहां पर लिखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है डिवीजन ऑफ लेबर पर। आपने डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है आप वो सब कुछ लिखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट?
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड. सो कंटेंट, what to write and context, where to write, that is very important dear friend. That thing you have to always keep in mind कि क्या लिखना है और कहाँ पर लिखना है. अब जब बात आती है कंटेंट की डियर फ्रेंड, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो भी आपने पढ़ा है सिंपली यू हैव रिटन डियर फ्रेंड. यू शुड प्रिपेयर वन आर्गुमेंट डियर फ्रेंड. If you are going to write about functionalist theory on stratification, if your functionalist perspective on power or functionalist theory on family or functionalist theory on religion, you should prepare some argument dear friend. Then substantiate that argument with some scholars, substantiate that argument with some examples, some case studies. That is content, a meaningful content dear friend. और देखिए कंटेंट आपके पास है बट आप उसको बुकिश नॉलेज में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. जैसा आपने बुक से पढ़ा है एग्जैक्टली आप उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आंसर राइटिंग में क्या है, जो आपकी कॉपी इवेलुएट कर रहे हैं, देखिए दैट पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन. आपको थोड़ा भी नहीं सोचना है कि आप ब्लफ कर सकते हैं. अपनी बातों को कितना इजी लैंग्वेज में विथ सम एग्जाम्पल आप प्रेजेंट कर पाते हैं, दैट इज आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड. ये आंसर राइटिंग है. सो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड ए बैलेंस ओपिनियन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑन स्ट्रेटिफिकेशन लिखा और अब्रप्ट एंडिंग कर दी कि हेंस स्ट्रेटिफिकेशन इज वेरी फंक्शनल. देखिए दैट मे नॉट फेच यू गुड मार्क्स, डेफिनेटली सम मार्क्स यू विल गेट, बट बैलेंस करिए उसे. हाउएवर सच फंक्शनलिस्ट अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर. वन सच प्रोमिनेंट स्कॉलर इज दिस. देन यू शुड ट्राई टू कंक्लूड इट, ट्राई टू अचीव अ बैलेंस डियर फ्रेंड. जब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की डियर फ्रेंड, अब कॉन्टेक्स्ट की जब बात आती है तो देखिए जब भी इस तरह की बात आती है कि देखिए डिस्कस डर्कीम्स थ्योरी ऑन डिवीजन ऑफ लेबर और डर्कीम्स व्यू पॉइंट अबाउट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एंड डू यू रियली थिंक दैट वर्क इज स्टिल रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. आप क्या करते हैं, देखिए पहला पार्ट तो आप अच्छे से लिखते हैं क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है. उसके बाद आप जो आपकी कॉपी इवेलुएट कर रहा है उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया आप खुद ही देख लीजिए कि रिलीवेंट है या नहीं है, हमें नहीं पता है. बट योर आंसर इज नॉट कंप्लीट डियर फ्रेंड. हमेशा आप पाएंगे कि आंसर्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं दोस्तों. यू शुड डू जस्टिस विथ ईच सच पार्ट. हर पार्ट के साथ आपको जस्टिस करना पड़ेगा दोस्तों. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो अलग अलग पार्ट हैं, दैट इज कॉन्टेक्स्ट. कंटेंट आपके पास है बट अगर उस कंटेंट को बिना कॉन्टेक्स्ट के आप कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, यू मे नॉट गेट गुड मार्क्स. आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों कि कैसे आपको इसे लिखने की कोशिश करना है. हमेशा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन्हें हाईलाइट करिए. अगर आपके पास कुछ डायग्राम है, कुछ फ्लो चार्ट है तो उन्हें यूज करिए. एंड मेरे अकॉर्डिंग देखिए अलग अलग लोग एडवाइस देते हैं बट मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, छोटे पैराग्राफ बनाइए, जो भी आपका पॉइंट है उसे एक पैराग्राफ में लिखिए. तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है दैट मर्टन्स एफर्ट टू डेवलप ए पैराडाइम फॉर फंक्शनल एनालिसिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन. अब देखिए देर आर सर्टेन की वर्ड्स. पहला क्या है, फंक्शनल पैराडाइम. और पैराडाइम का मतलब क्या है, फंक्शनल एनालिसिस. जो भी इन्होंने फंक्शनल एनालिसिस की ये काफ़ी सिग्निफिकेंट वन मानी जा रही है और इसको आपको डिस्कस करना है दोस्तों. इसे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है. सो ब्रॉडली इफ यू आस्क दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस क्वेश्चन, तो वन टर्म इज पैराडाइम, सेकेंड टर्म इज व्हाट इज फंक्शनल एनालिसिस. फंक्शनल एनालिसिस के बारे में मर्टन ने एक पैराडाइम दिया जिसे मोस्ट सिग्निफिकेंट वन माना जाता है. इट इज रिगार्डेड एज कोडिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शनिज्म. जो पहले से फंक्शनिज्म चला आ रहा था उसको इन्होंने मॉडिफाई किया. क्या मॉडिफिकेशन इन्होंने ऐसा किया, बिकॉज ऑफ विच इट इज रिगार्डेड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट वन. देखिए इस पर आपको फोकस करना है. जनरली हम गलती क्या करते हैं, हमारे माइंड में एक पैटर्न होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में आपने लिखा कि आर.के. मर्टन वॉज अ वेरी ग्रेट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, ये जो भी आप लिखते हैं स्टैंडर्ड. मेन बॉडी में जो भी उनकी फंक्शनल एनालिसिस है वो आपने लिख दिया. सिंपली आपने कंक्लूजन लिख दिया, हेंस इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट वन. देखिए कैसे वो सिग्निफिकेंट है, इसके साथ आपको जस्टिस करना है, इसके साथ आपको जस्टिस करना है.
सो देखिए, यू मे राइट योर इंट्रोडक्शन. इट कैन बी एनी इंट्रोडक्शन डियर फ्रेंड. यू शुड राइट वन मेन बॉडी जिसमें आप बताएंगे कि कैसे उन्होंने फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की बात की, कैसे उन्होंने चेंज के कंपोनेंट को इंक्लूड किया, कन्फ्लिक्ट के कंपोनेंट को इंक्लूड किया. देन यू शुड ट्राई टू राइट कि हाउ इट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, एंड इफ एट ऑल सम क्रिटिसिज्म इज देयर, ट्राई टू इंक्लूड दैट क्रिटिसिज्म ऑल्सो. सो देखिए, मुझे लगता है कि देखिए ये एक आइडियल पैटर्न होना चाहिए, और ये कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था. देखिए, इस तरह के और भी बहुत सारे सेशन हम YouTube के थ्रू आपके पास ले आएंगे डियर फ्रेंड. डिफरेंट आंसर राइटिंग सेशंस आई विल ब्रिंग यू पीपल. सो इफ़ यू पीपल लाइक दीज क्लासेस, और अगर देखिए सोशोलॉजी को लेकर आपके माइंड में कोई डाउट है, और अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल को एक ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर में करना चाहते हैं, सो वी एट एनालिटिक्स IAS Academy आर गोइंग टू लॉन्च न्यू फाउंडेशन बैच डियर फ्रेंड फ्रॉम 15 February 2025. 4.5 month का ये कोर्स है. आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विथ इवेल्युएशन होगी, प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होगा. तो थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर स्टेइंग विथ मी एंड फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू डियर फ्रेंड्स.